Hello guys, today we are going to discuss next chapter, that is laws of motion in the series of NEET PYQ. Okay, so welcome once again. And in 2024, one question was asked. It was very simple question. Question is, a horizontal force 10 Newton is applied on a block A as shown in the figure. There are two blocks A and B. With the mass of blocks A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B is. ठीक, चलो देखते हैं. तो if we are applying force from this side, force from this side, then block A and B, this block A will try to push B also. So block A and B will move together because surface is frictionless. So I can consider complete mass that M net is equal to M net means the comparable block, one block is moving. M net कितना हो जाएगा 2 kg plus 3 kg, that means 5 kg. That means both blocks will move just like 5 kg block is moving. Okay, so we know the formula. F net is equal to mass into acceleration, means mass net into acceleration. F net कितना है? F net है 10 न्यूटन. Mass net बोले तो 5 kg into acceleration. So that means we will have A is equal to 2 meter per second square. A is equal to कितना? 2 meter per second square. Okay, so both blocks will move together with an acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, तो FBD बनाते हैं. If I'm drawing FBD of block B, block B is having mass 3 kg and some force is applied by block A, force applied on B because of A. Okay, and this one is also moving with acceleration कितना 2 meter per second square. ना अप्लाई कर लो फॉर्मूला. तो फोर्स ऑन B because of A is equal to mass of B into acceleration of B. So mass of B is कितना 3, acceleration of B is कितना 2. तो आंसर कितना हो जाएगा 6 न्यूटन. और अपना 6 न्यूटन बोले तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इन 2023 क्वेश्चन पूछा गया था. क्या क्वेश्चन था? A football player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is. देखते हैं. चलो पहले डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं. सो डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं. चलो, ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया. ठीक, तो देखो, जो फुटबॉल प्लेयर है वो किधर मूव कर रहा है? ही इज मूविंग टुवर्ड साउथवर्ड. तो मैंने बोला साउथवर्ड मीन्स ऐसे मूव कर. ठीक, और because of that opponent, to avoid the opponent, he has turned towards eastward. तो फाइनल वेलोसिटी किधर हो गया उसका? इधर. तो और विद द सेम स्पीड, स्पीड इज सेम. तो मान लो उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड थी कितनी? u. इनिशियल स्पीड u इनिशियल इज इक्वल टू u. डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? डायरेक्शन इज j और माइनस j, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग डाउनवर्ड माइनस j और अपवर्ड j, एंड राइटवर्ड i एंड लेफ्टवर्ड माइनस i. एंड u फाइनल कितना होगा? u फाइनल बोले तो स्पीड इज सेम ओनली और डायरेक्शन इज i कैप. ठीक, तो मेरा फॉर्मूला होता है a और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, तो देखते हैं. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t टाइम टेकन. ठीक है, u फाइनल कितना है? u i कैप माइनस इनिशियल कितना है? इनिशियल है मेरा माइनस ऑफ u j कैप अपॉन डेल्टा t. if we are saying time t is taken, चलो डेल्टा t रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. u we can take common and here it will be I minus minus plus j n upon delta t. So direction of this vector, that I and j, direction of this vector means somewhere here.
somewhere here, because we have considered direction such that I cap minus I cap j minus j cap, and this one is j cap. Okay, so this one will be I plus j cap डायरेक्शन। तो ये किधर हो जाएगा मेरा, बोले तो नॉर्थ ईस्ट। तो along नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is this one. तो इसमें क्या करना है, देखो मेरे को पता है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल। और इफ ब्लॉक और बॉडी इज हैविंग मास m और सरफेस, बिकॉज ऑफ सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट कितना होता है, और इसका एम जी डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल फोर्स अप होगा, और मेरा होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू। सो दैट फोर्स अप्लाई कर लो, देखो एन कितना होगा, एम जी ओनली। तो मैंने लिखा म्यू एम जी, और उसने बोला है कि दैट मैक्सिमम एक्सीलरेशन मींस फ्रिक्शनल फोर्स शुड नॉट बी लेस देन द मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ही। तो देखो एम से एम कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। म्यू बोले तो कितना के बना है, म्यू बोले तो 0.15, जी बोले तो कितना के बना है 10, कितना आ गया मेरा 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसको 1.5 मीटर पर सेकेंड इसको ले, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन 2022 उसने पूछा है कि दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, देन द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड आर हैव मैग्नीट्यूड रेस्पेक्टिवली। देखो ए बी, पहले पहले हम डिस्कस करते हैं दैट स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर मींस डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मींस डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, मीन्स हमको पता है कि आई टू आई जे टू जे और के टू के डॉट करना है और विद साइन एंड आंसर हो जाएगा। तो आई टू आई के, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। ये कितना होगा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक, देखो आई टू आई किया 2 इंटू 3 6, देन जे टू जे किया plus sign will be there. So 2 into 1, 2, then minus minus plus once again, and 2 into 1, 2. कितना हो गया मेरा 6 and 4, 10. So first will be 10. That means option A and or D दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसने बोला है कि मेरा वेक्टर प्रोडक्ट को निकालना। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, सिंपल से दोनों का टेबल में रख लो, मॉड में। ठीक है, ओके। तो मैंने इसका वैल्यूज कितना होगा, आई जे के, और फर्स्ट वाला एफ बोले तो 2 1 -1, और इसका कितना हो जाएगा 3 2 -2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आई, मेरे को पता है कि डायगोनली सॉल्व करना, तो 1 इंटू -2 देन माइनस ऑफ 2 इंटू -1, तो ये +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देन माइनस जे कैप, जे कैप बोले तो 2 इंटू 2 इंटू -2 -4, एंड माइनस 3 इंटू -1 बोले तो प्लस हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस के कैप, के कैप बोले तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3। तो मेरा फाइनल आउटकम होगा, देखो ये वाला कैंसिल हो गया, रह गया आ गया कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई जे कैप प्लस के कैप, और इसका मॉड कितना आएगा, मॉड ऑफ मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बोले तो
रूट ऑफ 1² प्लस 1² बोले तो √2। तो कोई ऑप्शन है? आंसर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है, in the diagram shown the normal reaction force between 2 kg and 3 kg we have to tell। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले इसमें फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स कितना कितना रहेगा। ठीक है, तो मैंने बोला एफ बी डी ड्रॉ कर लो इसका। देखो मेरे को पता है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ दिस वन, देखो इफ वी आर अप्लाइंग अपवर्ड फोर्स and all blocks will move together because there is no other force, gravitational force तो नीचे रहेगा, तो because of that they will not break the contact। ठीक है, तो मैंने बोला नेट फोर्स नीचे कितना आ जाएगा। ठीक है, तीनों ब्लॉक वी कैन कंसिडर सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक मीन्स a single block of a single block of 1 kg plus 2 kg plus 3 kg means 6 kg is there, and we are applying upward force 60 newton and downward force कितना 18 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स पे कितना हो गया मेरा? होगा 42 न्यूटन। सो एफ नेट इज इक्वल टू 42 न्यूटन, एंड दैट विल बी मास नेट इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास नेट कितना है मेरा? 6 इंटू ए एंड 42, तो मेरा कितना आ गया? 7। ये बोले तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोले तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा? इसका होगा 7 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मैंने उसने पूछा 1 केजी, दैट बिटवीन 1 केजी एंड 2 केजी। ठीक, चलो 1 केजी वाले ब्लॉक को ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 1 केजी वाला ब्लॉक, 1 केजी वाले ब्लॉक पर इधर कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। ठीक है, और ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसका? नेट फोर्स होगा मेरा m इंटू एफ नेट। और उसने पूछा ना बिटवीन एफ नेट पूछा उसने। ठीक है, एफ नेट बोले तो अच्छा, इधर एफ नेट कितना हो रहा है मेरा? एफ, और इधर कितना लगेगा मेरा? इसका नेट बोले तो एम मीन्स 7 इंटू मास, मास कितना है इसका? 1 केजी, तो इस पर 7 न्यूटन नेट लगना चाहिए। और तो इधर से कुछ फोर्स होगा, इधर से कितना हो जाएगा? एफ नेट किधर होगा? एफ नेट इधर होगा, और नेट फोर्स कितना आ रहा है? 7 न्यूटन इधर। तो ये वाला फोर्स कितना आ जाएगा? एफ बिटवीन 1 2, एफ बिटवीन 1 2 निकाल लेते हैं। देखो एफ नेट इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू F12 माइनस 18। तो F12 कितना होगा? F12 बोले तो 7 प्लस 18 कितना हो गया? 25 न्यूटन। सो 25 न्यूटन मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट with a maximum load of 2000 kg, lift plus passenger is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 newton। ठीक है, the minimum power delivered by the motor to lift in watts। ठीक है, तो देखो एफ ऐसे लिफ्ट है मान लो। ठीक है, ठीक है, इसका कितना मास है? मास है 2000 kg, that means mg will be downward force। ठीक है, that is downward force। एंड उसने बोला है मूविंग अप मींस फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो डाउन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 3000 न्यूटन। और mg कितना हो जाएगा? और g की वैल्यू 10 लेनी है, तो 2000 इंटू 10 बोले तो 20,000 न्यूटन। और ये वाला तो एफ नेट डाउनवर्ड, एफ नेट कितना हो गया? 20,000 प्लस 3000 बोले तो 23,000 न्यूटन। ठीक, और वेलोसिटी सॉरी स्पीड कितना है? 1.5। तो मेरे को पता पावर इज इक्वल टू एफ नेट इंटू
स्पीड। तो एफ नॉट कितना 23000 इंटू इंटू मेरा 1.5 1.5। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 34500 वॉट। ठीक है कोई ऐसा ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन है मेरा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter. It strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to it. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेंट। ठीक है, मेरी एक थ्योरम होती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बोले तो एम इंटू डेल्टा वी। ठीक, तो मैंने बोला बॉल है, बॉल कैसे है, एक बॉल है और बॉल यहाँ से ड्रॉप हुई, ड्रॉप करी मैंने। ठीक है, ड्रॉप करी कितना हाइट से, h इज इक्वल टू 10 मीटर। h इज इक्वल टू 10 मीटर, यहाँ से मैंने ड्रॉप करी। और इसमें इसका कितना होगा, मास कितना, मास इज इक्वल टू 0.15 kg। ठीक है, यहाँ से इसका वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी कितने वेलोसिटी सेट करेगा, तो v इज इक्वल टू कितना होता है √2gh। रूट ऑफ 2g बोले तो उसने बोला है 10 लेना ना, तो 10 इंटू h कितना है 10। तो मेरा ये हो गया मेरा √200 बोले तो 14.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी। और उसने बोला इट रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, दैट मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो रिबाउंड्स करेगा मीन्स जैसे ही यहाँ यहाँ रिबाउंड यहाँ हिट किया कितने वेलोसिटी से 14.14, तो सेम वेलोसिटी से ही ये ऊपर चला जाएगा। तो कैन आई से दैट इन इफ आई एम टेकिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मैंने कितना लिया पॉजिटिव, तो अपवर्ड क्या लूंगा मैं, अपवर्ड लूंगा नेगेटिव। तो चलो यहाँ से देखते हैं, तो मेरा कितना आ गया डेल्टा पी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम, एम बोले तो 0.15 और डेल्टा वी बोले तो 14.14 माइनस माइनस ऑफ 14.14, तो कितना हो जाएगा मेरे 0.15 इंटू 18 सॉरी 28.28, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 4.2 मीटर पर सेकेंड। है कोई आंसर, 4.2 सॉरी केजी इम्पल्स ना, हाँ सो 4.2 केजी मीटर पर सेकेंड। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 4.2 केजी मीटर पर सेकेंड, और आंसर इज डी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट 2020 नेक्स्ट 2020 में उसने पूछा टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration into gravity. इसको रोप मेथड से कर लेते हैं, बिकॉज रोप इज सिंगल रोप। देखो, और ये 6 kg है, ये 4 kg, तो ऑब्वियसली किधर डाउन होगा, this block will go down और this block will go up। एक्सलेशन सेम होगा बिकॉज सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, चलो इसमें देखो mg बोले तो 6g विल बी डाउन, और इसमें भी 6g विल बी दैट, इसमें 4g विल बी डाउन। ठीक है, तो लिख लो, देखो मैंने लिखा दिस वन दैट एम ए इज इक्वल टू एफ नेट। ठीक है, तो एम ए बोले तो ए वाला भी सेम डायरेक्शन है, ए वाला सेम डायरेक्शन और ए वाला भी ऐसे अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने लिखा एम, देखो 6a प्लस 4a इज इक्वल टू, देखो अब देखते हैं 6g इज इन डायरेक्शन ऑफ ए ओनली, बट 4g इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मैंने लिखा इसको अपोजिट में मीन्स -4g। तो यहाँ कितना होगा 10a इज इक्वल टू 2g, 2 से इसको कैंसिल किया तो 5, a इज इक्वल टू कितना आ गया g/5, g/5 बोले तो आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट उसने बोला है, ठीक, 2019 में पूछा है, a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is this one. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis. ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो मैंने बोला यहाँ कोई ऐसे सिलेंडर का सरफेस है, ठीक है, और ब्लॉक किधर है? चलो यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और ब्लॉक मेरा है इधर, ठीक है, ब्लॉक किधर है? ब्लॉक इज लाइक दिस, ठीक है, ब्लॉक मेरा है ऐसे, ठीक है, ब्लॉक ऐसे है। देखो एम जी तो इस पे नीचे लगेगा, और बिकॉज ऑफ रोटेशन इस पे क्या रहेगा? एक नॉर्मल फोर्स कैसे रहेगा? ऐसे। और नॉर्मल फोर्स बोले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो रहेगा मेरा एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स मेरा हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। और कंडीशन क्या है? उसने बोला है द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स ये स्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मेरा v इक्वल टू आर ओमेगा होता, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया तो मेरा हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको put कर लो, तो एफ शुड बी इक्वल टू एम जी, एफ शुड बी इक्वल टू एम जी। और एफ की वैल्यू कितनी? म्यू इंटू एन, एन है मेरा एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो पुट कर लो म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी। देखो एम से एम कैंसिल हो, तो ओमेगा स्क्वायर बोले तो जी अपॉन म्यू आर, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट ऑफ जी अपॉन म्यू आर, रूट ऑफ जी अपॉन म्यू आर। सारी वैल्यूज पुट कर लो। जी की वैल्यू कितनी है? 10, 10 पुट कर लो, ठीक है। म्यू म्यू कितना गिवन है? 0.1, 0.1 पुट कर लो, इंटू आर, आर बोले तो कितना है? 1 मीटर, इसको पुट कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा? ये हो गया मेरा रूट ऑफ 100, रूट ऑफ 100 बोले तो 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन। तो उसने बोला मास एम इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड वेल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, ठीक है। तो एक वर्टिकल सर्कल मीन्स वर्टिकल सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। और यहाँ पे एक मास अटैच है, मीन्स ऐसे कोई मास अटैच है, तो यहाँ पे इसका टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट मैंने पोजीशन इसका कंसिडर किया, ठीक है। और यहाँ पे ये सेंटर, ठीक है। जब यहाँ पे देखो एम जी विल बी डाउनवर्ड, यहाँ पे भी एम जी डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे भी एम जी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और यहाँ यहाँ टेंशन क्या होगा? टेंशन विल बी टेंशन विल बी इन सेम डायरेक्शन, मीन्स टेंशन ऐसे होगा। और यहाँ टेंशन क्या होगा? यहाँ टेंशन ऐसे होगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा? ऐसे, एफ से, और सेंट्रीपिटल फोर्स एफ से, ठीक है। तो मैंने बोला एट टॉप एट टॉप लिखा, तो एट टॉप टी प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ सी, ठीक है। तो टेंशन क्या हो गया? एट टॉप इज इक्वल टू टी वन लिख लो, इसको टी वन, इसको टी टू, तो टी वन इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम जी, इसको इक्वेशन वन लिख दिया। और एट बॉटम क्या हो जाएगा? एट बॉटम और लोअर मोस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा? एट लोअर मोस्ट पॉइंट मेरा होगा this one, that T2 minus mg is equal to fc. That means that T2 is equal to fc plus mg. Which one is the large force as compared to first? It's the T2 is more. So at the lowest point, the chances of breakdown will be more. That means answer होगा मेरा कौन सा? Answer C will be the correct.
ठीक है। नेक्स्ट वन, उसने 2018 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is incorrect. ठीक है। फर्स्ट वन, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस इट इज करेक्ट, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, the contact is line contact, so interlocking of the molecules of the surface और irregularities less होगा, तो रोलिंग वाला कम होता है, स्लाइडिंग वाला ज्यादा होता है। ठीक है, फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, हाँ लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन, नॉर्मल नॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। थर्ड वन, उसने बोला फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट द रिलेटिव मोशन, हाँ बिल्कुल, फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही होता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है। फोर्थ वन, उसने बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, नहीं बिल्कुल, बिकॉज म्यू कोई भी हो, म्यू क्या होगा, एफ एस अपॉन एन, मीन्स रेशियो ऑफ फोर्स एंड रेशियो ऑफ फोर्स, मीन न्यूटन अपॉन न्यूटन, तो ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द इनकरेक्ट। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक। नेक्स्ट वन उसने पूछा है 2018 में, the block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The acceleration between a and theta for the block to remain stationary on the wedge. ठीक है। इसमें स्यूडो फोर्स लगा लो। स्यूडो फोर्स में क्या हो जाएगा कि मैंने इसको फोर्स किधर दे दिया, इसको फोर्स दे दिया मैंने अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन दे दिया अपोजिट डायरेक्शन में ए, तो देखो ये वाला थीटा, तो ये इधर वाला एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इधर वाला आ जाएगा मेरा इसका ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा, और फोर्स फोर्स बोले तो कितना हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा। ठीक है। और इस पर मैंने एम जी कितना हो, एम जी मेरा डाउन होता है, एम जी विल बी डाउन, और इधर हो जाएगा मेरा एम जी का एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, और इधर ये कितना हो जाएगा, एम जी cos थीटा। ठीक है। तो mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू a cos थीटा फॉर नो स्लिप कंडीशन, तो मैं लिख लो दैट mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू m cos थीटा, सो mg sin थीटा, देखो m से m कैंसिल, a इक्वल टू कितना आ गया, g sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट मीन्स g tan थीटा। है कोई ऑप्शन ऐसा, तो आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है टू ब्लॉक्स, 2017 में पूछा है। ठीक है, और 2017 में पूछा, क्या बोला है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of acceleration of a and b immediately after the string is cut are respectively. ठीक है, चलो पहले इसका एबीडी बनाते हैं, बिफोर कट, बिफोर कट, ठीक है, बिफोर कट, बिफोर कट में क्या होगा मेरा, बिफोर कट, बिफोर में मैंने बोला कि ए मेरा ऐसे रहेगा, और यहाँ पे स्प्रिंग, और यहाँ पे, चलो इसको देखो पहले, बी, बी पे क्या रहेगा, एम जी डाउनवर्ड, और इधर स्ट्रिंग में कितना रहेगा, टेंशन, दैट इज इक्वल टू एम जी ओनली। ठीक है, तो देखो इधर भी ऑपोजिट में कितना रहेगा, एम जी ओनली। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस मास 3m, इस पे कितना रहेगा, 3mg अगेन डाउनवर्ड, तो इधर टेंशन 2 रहेगा मेरा, 3mg प्लस mg, दैट इज 4mg। ठीक है, आफ्टर कट, आफ्टर कट, मैंने जैसे ही इसको कट किया, स्ट्रिंग को, इसको मैंने कट किया, इसको जैसे ही कट किया तो क्या हो जाएगा, देखो बी, बी विल हैव, बी विल हैव फ्री फॉल, फ्री फॉल मीन्स एक्सलेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जी ओनली, एक्सलेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जी ओनली। ठीक है, अब ए की बात करते हैं, देखो ए का क्या क्या केस होगा, बिकॉज टेंशन बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग वो हट जाएगा, बिकॉज नीचे तो मास है ही नहीं, तो बट ऊपर स्प्रिंग में तो रहेगा ना फोर्स, तो स्प्रिंग में फोर्स रहेगा, तो मैंने देखो इसमें ऐसे लिखा, ऊपर वाला फोर्स कितना है, ऊपर वाला फोर्स है टी इज इक्वल, टी टू इज इक्वल टू 4mg, और नीचे वाला फोर्स कितना है, नीचे वाला, अब बिकॉज ऑफ मास दिस 3m होगा, तो 3m मीन्स 3mg। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, तो मैंने बोला दैट मास इंटू एक्सलेशन इक्वल टू नेट फोर्स कर लो, तो T2 माइनस 3mg इज इक्वल टू 3m। ठीक है, और T2 कितना है मेरा, 4mg, तो 4
एम जी माइनस 3 mg इज इक्वल टू 3m। m से m कैंसिल हो गया। 4g माइनस 3g मेरा होता है g, और इधर एक्सलेशन लिखना भूल गए। ठीक है, तो देखो a द 3a इज इक्वल टू कितना हो गया g। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया g/3। g/3 मीन्स ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, g/3, एक्सलेशन ऑफ a g/3 और एक्सलेशन ऑफ b g। तो आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो 2016 में उसने पूछा है। 2016 में क्या पूछा है, what is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। ठीक है, चलो एक बना लेते हैं लूप, वर्टिकल लूप। ठीक है, वर्टिकल लूप मैंने बनाया। ठीक है, और इसमें, ठीक, चलो मैंने बोला बॉडी ऑफ मास एम इधर बना लो, मास एम इज देयर, तो इसका मास कितना है, एम इज देयर। ठीक है, इसका देखो एम जी विल बी डाउनवर्ड, और इसका भी एम जी विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो इसको मैंने कंसिडर कर लिया पॉइंट ए, इसको मैंने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी, और इसको कंसिडर कर लिया पॉइंट सी। तो यहाँ इसका वेलोसिटी कुछ होगा वी सी, और यहाँ इसका कुछ वेलोसिटी होगा कितना, वी ए। ठीक है, वी ए इसको मान लिया, और यहाँ इस पर टेंशन, टेंशन कितना रहेगा, टेंशन मेरा रहेगा टी ए, और यहाँ पर टेंशन मेरा रहेगा टी सी। ठीक है, देखो if we are applying Newton's second law, then TA minus mg at lowest point is equal to कितना हो जाएगा, is equal to m and velocity, velocity यहाँ पे v स्क्वायर a अपॉन r, इसका रेडियस r है तो रेडियस r लिखिए, इसको इक्वेशन मान लिखिए। ठीक है, अब मैंने लिखा, और एनर्जी एट दिस पॉइंट, एनर्जी एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, एनर्जी, इसको मैं बॉटम ले रहा हूँ तो यहाँ बस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ m एंड v a स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट लिखो, एट पॉइंट C, इफ आई एम राइटिंग सो क्या हो जाएगा, टेंशन एट C प्लस mg इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट m v c स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये हो गया, इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 3। ठीक है, और अब उसने बोला है कि मिनिमम वेलोसिटी पूछा, मिनिमम वेलोसिटी मीन्स यहाँ पर टेंशन क्या होनी चाहिए, टेंशन मिनिमम, टेंशन मिनिमम मीन्स टेंशन होना चाहिए जीरो, टेंशन होना चाहिए जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वी सी कितना आया, वी सी आ गया मेरा रूट ऑफ आर जी, रूट ऑफ आर जी मेरा क्या आ गया, वी सी, वी सी आ गया मेरा रूट ऑफ आर जी। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पर जो एनर्जी है, तो एनर्जी कितना होगा, देखो यहाँ इसने जो हाइट ट्रेवल किया है, हाइट, हाइट बोले तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है, हाइट उसने किया है आर प्लस आर 2r। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी एट सी पॉइंट, एनर्जी एट सी पॉइंट कितना होगा, हाफ, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच, एच बोले तो 2r। ठीक है, और बट बाय एनर्जी कंजर्वेशन ए एनर्जी किसके इक्वल होगा, ए एनर्जी इक्वल होगा इस वाले के, मीन्स इनिशियल एनर्जी के। ठीक है, तो अब इसको इक्वल कर दो किसके, हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी ए स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लो, देखो इसमें हाफ इज हाफ ओनली, एम एम चलो एम से एम कैंसिल, एम एम कैंसिल कर दो, वी सी इसको बोले तो आर जी। ठीक है, प्लस ये वाला कितना हो गया, 2 आर जी।
ये वाला कितना हो गया 1/2 वी ए स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आर जी प्लस ये वाला 4 RG और ये वाला हो गया वी ए स्क्वायर। दैट मीन्स वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 RG, रूट ऑफ 5 RG। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उसने बोला है मिनिमम वेलोसिटी कितना, रूट ऑफ 5 RG, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है इन 2016 में पूछा है ये a particle of mass m moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to the power minus 4 joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion? ठीक है, आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द मोशन। चलो देखते हैं, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने बोला वेलोसिटी आप आफ्टर सेकंड रिवॉल्यूशन मेरा वी हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 2 अपॉन मेरा होगा एम। ठीक है, एम अब यहाँ पुट कर लो, एम कितना है, एम बोले तो 10 ग्राम, 10 ग्राम बोले तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। ठीक है, तो यहाँ मैंने पुट किया, तो इस ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और अपॉन कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, इससे मैंने ये कैंसिल किया, कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 3, so that means sorry 10 to the power minus 1. Okay, so now it will be 16 into 10 to the power minus 2, so v square we are having value 16 into 10 to the power minus 2, so equation 1. Now we know we can consider initially the velocity is 0, so now applying equation of motion. So equation of motion means v square is equal to u square plus 2as. Initial velocity is 0, that means v square is equal to 2a. 2 revolution after the second revolution we will have means 4 pi r, 4 pi r, and r is 6.4 centimeter. So v square value we are having 16 into 10 to the power minus 2 is equal to 2a, that is 4 pi into 6.4 into 10 to the power minus 2, because centimeter we have to convert into meter. 10 to the minus 2, 10 to the minus 2 is cancelled, this one 4 into 2 8, this one 8. So a is equal to 2 upon 6.4 pi. After solving this we will get approximately 0.1 meter per second square. Okay, so last question they are saying in 2015 it was asked two stones of masses m and 2m are welded in a horizontal circle, the heavier one in a radius of r/2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of the value of the heavier stone when the experience same centripetal force. So we can apply the centripetal force formula for both of them. Centripetal force formula Fc is equal to mv square by r. So Fc1 is equal to Fc2, that means m1 v1 square upon r1 is equal to m2 v2 square upon r2. ठीक है, तो m heavier one is 2m into v1 square. ठीक, and upon what the radius, the heavier one is in the radius of r/2, so r/2. ठीक, this one lighter one m v2 square upon r only, this one m and m cancel, now this will be 2 into 4 and r cancel 1 1, this will be 4 v1 square is equal to v2 square, so
v2 is equal to 2v1. So now they are asking the value of n, that means answer will be 2. Thanks.